Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Unit number 1 which is named as Citizenship. तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप क्या होती है, एक सिटीज़न क्या होता है और माशरे में रहते हुए एक सिटीज़न के क्या हकूक़ होते हैं, कौन से ऐसे उसके राइट्स हैं जिसका उन्हें पता होना ज़रूरी जिसका उन्हें इल्म होना चाहिए और कौन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि उसके कौन से फ़राइज़ होते हैं जो माशरे में रहते हुए उसे अदा करने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस क्या है, ये कौन सा इदारा है और इसका ह्यूमन राइट्स में क्या जो है वो रोल रहा है, क्या किरदार रहा है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई लर्न, identify civic rights and responsibilities and reasons why they may change over time, recognize the ethics of being digital citizens when connected online, how to deal with difference of opinion, identify the fundamental human rights as stated by UN Charter, understand that all individuals have equal rights irrespective of religious and ethnic differences, and learn to respect individual differences in opinion. Explain the importance of freedom of speech, understand the importance of discussion and negotiation as tools for resolving conflicts at home and school. Propose ways to create peace and harmony, recognize and practice common etiquette in the civilized world of today. So first of all, we have rights and responsibilities of citizens. So first of all, you have to test your brain power. This is Rao's home. Tell Rao what three duties he must fulfill at his home. तो प्यारे बच्चों, आपने बताना है कि ये राउफ का घर है, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी 3 ड्यूटीज़ हैं जो उसे अपने घर पर देनी चाहिए। Refresh your memory. In grade 4 you learn that human rights are all basic human needs that we need to live. Responsibility means everything that is person's duty. A citizen is a member of a country who has some rights and responsibilities. Citizenship is a state of being a citizen of a country. तो प्यारे बच्चों, ये वो चीज़ें जो हमने क्लास 4 में सीखी थी कि ह्यूमन राइट्स वो होते हैं, वो बेसिक राइट्स होते हैं जो सबको चाहिए होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो होता है जो हर इंसान की ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, और जो सिटीज़न होता है वो किसी भी मुल्क का फ़र्द होता है जिसके कुछ राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। So next we have Ali loved playing in a garden near his house. One day the garden became messy with trash. He realized that while everyone has a right to enjoy the garden, it is everyone's responsibility to keep it clean. So Ali and his friends gathered and started cleaning the garden. Some neighbors also joined them. Together they made the garden beautiful again. Ali learned that with rights come responsibilities, and when everyone does their part, the community is a better place. तो एक दिन क्या हुआ, अली जो है वो अपने घर के करीब वाले गार्डन में खेल रहा था और एक दिन गार्डन बहुत ज़्यादा गंद से भर गया, बहुत मैसी हो गया। अली को एहसास हुआ कि अगर सबके पास ये हक है कि वो गार्डन में इंजॉय करें, तो सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसे साफ़ सुथरा रखें। तो अली और उसके दोस्तों ने मिलकर बाग की जो है वो सफाई का काम शुरू कर दिया। उनको देखकर उनके कुछ नेबर्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, तो सब ने मिल के गार्डन को दोबारा से खूबसूरत बना लिया। इस तरह उन सब ने सीखा कि जैसे हमारे राइट्स होते हैं वैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और हमें कम्युनिटी को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने राइट्स को पूरा करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। सो यू हैव टू टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अली स्टोरी। आपने बताना है कि आपने अली की इस कहानी से क्या सीखा। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ सिटीजन्स. Some basic rights of citizens are given below. All citizens have a right to get an education. All citizens have a right to live in a safe environment. All citizens have a right to religious freedom. All citizens have a right to pursue any career. All citizens have a right to access health facilities. All citizens have a right to freedom of speech. All citizens have a right to be treated equally. All citizens have a right to travel within their country. All citizens have a right to have the nationality of their country. तो प्यारे बच्चों, सबके पास इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो तालीम हासिल कर सकें, वो एक महफूज माहौल में अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको मज़हब की आज़ादी हो और वो कोई भी करियर जो है वो अपना सकें, उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों,
उनके पास हर तरह की मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो यानी कि बोलने का हक हो। इसके अलावा हर सिटीज़न के पास ये हक है कि उसको बराबरी का उसके साथ सलूक किया जाए और हर सिटीज़न को इस बात का हक है कि वो अपने मुल्क के अंदर जहाँ चाहे वहाँ पे फ्रीली ट्रैवल कर सके। हर सिटीज़न के पास अपने मुल्क की नेशनैलिटी का हक है। आगे हम बात करेंगे कि सिटीजन्स के फ़राइज़ क्या होते हैं, यानी कि अगर वो एक मुल्क में रह रहे हैं तो वो कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जो उन पर आयद होती हैं। सो लेट डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। अलॉन्ग विद देयर राइट्स सिटीजन्स ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एवरी सिटीजन शुड ओबे द रूल्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री। एवरी सिटीजन शुड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। एनी सिटीजन शुड नॉट हार्म पब्लिक प्लेसेस। Any citizen should not waste water, gas and electricity. Every citizen should pay due taxes. Every citizen should keep the environment clean. Every citizen should help others. Every citizen should be loyal to the country. तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने मुल्क के रूल्स और लॉज को फॉलो करे, दूसरों का एहतराम करे, पब्लिक मकामात को नुकसान ना पहुंचाए और पानी, गैस और बिजली को ज़ाया ना करे, अपने टैक्सेस अदा करे, अपने माहौल को साफ़ रखे, दूसरों की मदद करें और अपने मुल्क के साथ वफादार रहे। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस पर हम बात करेंगे कि वक्त के साथ साथ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या चेंज आया है। नाउ यू आर यंग एंड यू हैव द राइट दैट योर पेरेंट्स शुड प्रोवाइड यू विद ऑल द थिंग्स यू नीड। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू स्टडी विद पैशन एंड हार्ड वर्क, learn good things and adopt good habits. This responsibility will change as you get older. Then your responsibility will be to serve and take care for your aged parents. Similarly, the rights and responsibilities of citizens also change with time. When Pakistan